Can I have your attention, please? Good afternoon, everyone. Those who are in the hall, I kindly request you to please settle down. Okay. Um, I welcome you all in session 5 of day 2 in Ahmedabad International Literature Festival. I'm Dr. Raisa Usmani, your host for the session. I'm an assistant professor with Charuset University in Anand. I'm an academic, editor, writer, translator, and a poet. We've had interesting sessions over 2 days, and continuing the flow of the sessions, we are moving forward. The area of folklore, and as a part of his PhD studies with Department of English and Cultural Studies in Manipur University. So thank you very much for coming over here. We appreciate your presence. And our moderator for the session, Mallika Mukherjee ji. She's a multilingual author and translator. If you were here yesterday, she has launched her new book, which is a chat book, um, written in a chat format, which was between the conversation that she had held with her friend, Mr. Ashwin Makwana, late Ashwin Makwana ji, and herself. Sorry? Makwan, sorry. Mr. Ashwin Makwan, late Mr. Ashwin Makwan, and herself. Um, she retired in 2016 from the post of Senior Audit Officer from the Office of Principal Director of Audit Central in Central Gujarat, Ahmedabad, and since then she has been engaged in freelance writing. So far, she has published 2 books of poetry, a travel memoir, and 2 volumes of Hindi chat novels. She has received an award from Central Hindi Doctorate MHRD on non-Hindi language Hindi writer, and for her poetry correction, Ek Baar Fir, which includes a citation and a cash prize of 1 lakh rupees. Her Hindi chat novel, You and Me, The Ultimate Dream of Love, has been selected for the Best Book Award for the year 2019 with a citation and trophy, including cash prize of 7,000 rupees. So, the panel consists of academicians. They will be carrying forward an interesting discussion on the theme Regional Literature, a Treasure Trove. We all believe literature is a mirror of society. And in order to understand a society, you should read more diverse works written on the society by different types and kinds of writers. However, in this wider area of literature, somewhere or the other, the regional literature still struggle to find its very loud space. And the recent example where India could find a space at the international, in the international fraternity, reading fraternity, was Gitanjali Shree's Tomb of Sand. So I think on that note, if we understand that regional literature also has a significant place in understanding certain regions, in understanding the world better, and in creating a better relationship between humans, not only of different regions, but also across the world. Since AILF 2022, the theme revolves around human nature and their relationship with the world. So I think on that note, I leave the forum open and hand it over to Mallika ji to take over the session. Thank you very much. AILF के मंच पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं इस सेशन का हिस्सा बनाने के लिए आदरणीय उमाशंकर जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और उन्होंने कहा था कि मैं स्पीकर्स की प्रोफाइल देखकर उनको सब्जेक्ट देता हूँ, तो मुझे इस बात पर अभी विश्वास हो गया कि मेरा जो प्रोफाइल में लिखा था कि मैं बहुभाषी लेखिका हूँ, तो बहुभाषी की लिमिट कहाँ तक है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी से गुजराती विभाग के अध्यक्ष है डॉक्टर उर्वशी पंड्या। उन्होंने एक बार मुझे एक कार्यक्रम के लिए एक विषय दिया था कि आपको
किसी भाषा के एक उपन्यास और उस पर बनी फिल्म पर तुलना करके लिखना है, बोलना है, लिखना नहीं। तो मैं खुश हो गई। मैंने सोचा बांग्ला भाषा में ही होगा, मेरी भाषा है, तो मैंने बोला ठीक है, मैं बांग्ला में लिख दूंगी कोई एक उपन्यास और उस पर बनी फिल्म। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको बांग्ला में नहीं लिखना है, आपको साउथ की किसी भाषा में लिखना है। तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने बोला मुझे तो साउथ की कोई भाषा नहीं आती। तो बोले नहीं, आप तो कर सकोगे, कर सकोगे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कल बात करती हूँ। तो उन्हें कहा मैंने गाइड फिल्म पर बात करती हूँ, क्योंकि गाइड फिल्म मैंने देखी हुई थी और R.K. नारायण ने लिखी है। तो उन्होंने बोला नहीं, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में लिखी है, वो उस भाषा में लिखी होनी चाहिए। अचानक मुझे याद आया कि MA में मेरा एक जो उपन्यास था वो था चेम्मिन, जिसकी कल भी एक इसमें चर्चा हुई है। तो चेम्मिन मैंने पढ़ा था, मलयालम तकशी का लिखा, और उस पर फिल्म तो नहीं देखी थी। फिर मैंने कहा चलो इस पर ही करती हूँ कोशिश। तो वो हकीकत में बहुत अच्छा बना वो कार्यक्रम। और अभी उमा जी ने मुझे जो दिए हैं ये जो सेशन दिया है, उसमें भी जो ये 3 मेहमान बैठे हैं वो अलग अलग 3 राज्य से है। तो अभी मुझे उनसे बात करने के लिए भी उनके राज्य के साहित्य को पढ़ना पड़ा। बहुत मेहनत की है मैंने, पता नहीं अभी सेशन कैसा होगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। हमारी आज की चर्चा का जो विषय है, क्षेत्रीय साहित्य एक कलात्मक खजाना। तो भारत के संदर्भ में कहूँ तो भारत दुनिया में सबसे अधिक भाषाई विविधता वाला देश है। प्राचीनता, विविधता, गुणवत्ता में समृद्ध भारत की प्रत्येक भाषा के साहित्य में अपने विशिष्ट और गहन विशेषता है। भारतीय साहित्य को किसी एक भाषा में अंकित नहीं किया जा सकता। और अभी जैसे इन्होंने कहा कि हिंदी या अंग्रेजी में अनुदित होकर हमारी प्रांतीय भाषा भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपना नाम कर रही है, इससे पता चलता है कि प्रांतीय भाषाओं का साहित्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हम गुजरात की भूमि पर बैठे हैं, तो गुजराती साहित्य के बारे में भी अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि गुजराती साहित्य भी उतना ही समृद्ध है जितना अन्य भाषाओं का साहित्य, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कक्षा पर उतना नहीं मिला प्लेटफॉर्म जितना मिलना चाहिए था। और अर्वाचीन साहित्य की बात करें तो नर्मद दलपत राम के बाद कलापी, नरसिंहराव द्विवेटिया, उमाशंकर जोशी, कन्हैयालाल मुंशी, गोवर्धन राम त्रिपाठी, पन्नालाल पटेल, धूमकेतु जैसे अनेक नाम है। और गुजराती लोक साहित्य के विशेषज्ञ झवेरचंद मेघाणी को हम नहीं भूल सकते। अभी गुजरात की धरती पर आयोजित इस उत्सव से हमारे सत्र की शुरुआत गुजराती आ जाता है बीच में शुरुआत में एक गुजराती गीत की 2 पंक्तियों से करना चाहूँगी। और ये जो गीत की पंक्तियाँ हैं मुझे बहुत पसंद है। मैं अगर 2 पंक्ति गा के सुनाऊंगी, मेरी अच्छी आवाज़ तो नहीं है गाने की, लेकिन आपको उसके राइटर कौन है मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ जो भी गुजराती बैठे हैं उन्हें इस गीत के बारे में पता ही होगा। मैं 2 पंक्तियाँ गाती हूँ। ओ चिंतु कोई मने रस्ते मळे ने कदी, धीरे थी पूछे के केम छे, आपने तो कहिए के दरिया सी मौज मां ने ऊपर थी कुदरत नी रहम छे। ओके, थैंक यू। ये कविता बहुत सुंदर है और इसके आगे के जो पंक्तियां हैं वो उसमें एक आध्यात्मिक भाव आता है ना, वो एक अलग है बहुत। ये गीत मैं जब भी सुनती हूँ अंत में मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं, ऐसा गीत है ये। मंच पर उपस्थित मेहमानों के परिचय तो आप सुन चुके हैं। आदरणीय डॉक्टर इंदिरा नित्यानंदम जी तमिल है और वांगथुई खुमान जी मणिपुरी है। डॉक्टर सजाउद्दीन महाराष्ट्र से है।
और मैं बंगाली हूँ। तो सेशन के समय को ध्यान में रखते हुए हम भारत के क्षेत्रीय साहित्य के बारे में जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही चर्चा कर पाएंगे। ये विषय इतना रोचक है कि आप सभी न केवल इस सत्र का आनंद लेंगे बल्कि आपको भारत के क्षेत्रीय साहित्य के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। जो लोगों को नहीं पता है ऐसी बातें हम यहाँ करेंगे। मेरा पहला प्रश्न डॉक्टर सजाउद्दीन से है। जहाँ तक हम जानते हैं कि क्षेत्रीय साहित्य वह साहित्य है जो एक विशिष्ट क्षेत्र के पात्रों, बोली, रीति रिवाजों, स्थलाकृति और अन्य विशेषताओं पर केंद्रित होता है। तो क्षेत्रीय साहित्य के बारे में आपकी क्या राय है? हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू मैडम, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। और मेरा जवाब, क्षेत्रीय साहित्य जो है आप सब जानते हैं, क्योंकि हम सारे अलग अलग रीजन से आते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर बोली बोली जाती है। और ऐसी बोलियाँ, जैसे आप बता रहे थे, इंडिया एक मल्टीकल्चरल कंट्री है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, जिसमें इतनी ज़ुबानें हैं जो काउंटेड हैं और अनकाउंटेड भी हैं, उसमें भी साहित्य लिखा जाता है। तो जब हम क्षेत्रीय साहित्य की बात करेंगे या रीजनल लिटरेचर की बात करेंगे, तो रीजनल लिटरेचर अब तक जो देखा गया है, मैं जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मेरी उम्र बहुत कम है, आप लोग बहुत बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यू नो मोर बेटर देन मी, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, रीजनल लिटरेचर जो है ना, रीजन के हद तक ही देखा गया है। उसमें भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर देखा गया है, नॉट बोलीज, जबकि बोलीज में भी लिटरेचर है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी ले लीजिए आप, हिंदी में लेट अस टॉक अबाउट यूपी और बिहार, वहाँ पे आपको बहुत सारे जो गिरमितिया के जो गीत हैं, वो आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं ऑफिशियल हिंदी, उसमें नहीं है। वो मेरे जहन से ज़ुबान निकल रही है, वो बहुत अच्छी ज़बान है, खायरे गाइले विदेश, इट्स भोजपुरी। और इस तरह की उर्दू की बात ले लीजिए आप, उर्दू जैसे अभी मैम बोल रहे थे आप कहाँ से हैं, मैं बोला मैं महाराष्ट्र से हूँ, और मैम और हाँ जी, तो अब महाराष्ट्र मतलब मराठी आएगा आपके सीन में, लेकिन दक्खनी, और मैं अगर बोलूँ उर्दू तो आपको आएगा यूपी वाली उर्दू, नहीं, दक्खनी उर्दू, विच इज एग्जिस्टेड। उसमें बहुत सारी लैंग्वेज लिटरेचर लिखा गया है, कविताएं हैं, नाट्य हैं, क्या नहीं है, लेकिन वो अभी तक एक जो मेन स्ट्रीम धारा में है वो नहीं आया है। तो रीजनल लिटरेचर का मतलब ये नहीं कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफ दैट रीजन। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड एज अ रीजनल लिटरेचर? Regional literature as a regional and geographical category of this physicality of this earth, one, people of that region, two, people of that region which speak different languages, कोंकणी पढ़ते हैं, मराठी पढ़ते हैं, पुनेरी मराठी पढ़ते हैं, मराठवाड़ी हैं, दक्खनी हैं, तो एक महाराष्ट्र का हिस्सा ले लीजिए। इस तरह से ये तो रहा नेशनल लेवल पे। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है रीजनल लिटरेचर के साथ? आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिग थिंग एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैं अपने लेवल पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कभी हिंदी में, कभी उर्दू में, कभी इंग्लिश में बोलूँगा, क्योंकि हाँ जी, गुजराती में भी कुछ बोलूँगा मैं। तो ये मेरे एक देश का बहुत अच्छा हिस्सा है कि मुझे बहुत सारी ज़बानें सिखा दिया है। तो इंटरनेशनल लेवल पे रीजनल लिटरेचर कैसे पहुंचा? क्या रीजनल लिटरेचर ऑफ गुजरात सिर्फ गुजरात में ही लिखा जा रहा है? इससे संबंधित सवाल मैं आगे हाँ कर जी, रही हूँ आपको। तो मैं ये जो है ना एक ओरिएंटेशन देके मैं इस बात पे रुकता हूँ। मैम विल आस्क मी सिमिलर हाँ क्वेश्चन। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन आने वाला है। हाँ जी, थैंक यू मैम। अच्छा, इस संदर्भ में जो आपने रीजियोनल लैंग्वेज के बारे में बोला ना कि अंदर और भी बोलियों में होता है, तो इस पर मैं बांग्ला साहित्य के बारे में थोड़ा कहूँगी कि भारत के किसी भी राज्य में शिष्ट साहित्य के साथ लोक साहित्य भी होता है, हर राज्य में। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लिए बिना बांग्ला साहित्य की बात अधूरी रह जाती है। उन्होंने लोक साहित्य को जनपद का कलरव कहा है।
लोक साहित्य का कोई काल नहीं होता। लोक साहित्य में सक्रिय प्राण शक्ति है, इसलिए अतीत से वर्तमान में आकर भविष्य की ओर अग्रसर होता है। बांग्ला लोक साहित्य के संग्रह में जिनका अमूल्य योगदान है, जैसे मैंने अभी गुजराती राइटर्स के बारे में बोला, तो बांग्ला लोक साहित्य को मतलब संपादन जिन्होंने किया उसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, आशुतोष भट्टाचार्य, मोहम्मद मसरुद्दीन, डॉक्टर अशरफ सिद्दीकी, डॉक्टर मैहारुल इस्लाम, और इन लोगों ने बांग्ला साहित्य को, लोक साहित्य को संपादन किया सब जगह जा जाके। अच्छा, इसमें एक जो मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय लोक साहित्य में एक विशेषता है यह कि सभी भारतीय भाषाओं में लोक तत्व की प्रधानता है। भारतीय लोक साहित्य में लोक नायक के रूप में जिन दो नायक चरित्रों ने हमारे क्षेत्रीय चरित्र पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है वो है श्री राम और श्री कृष्ण। इनके बारे में हर भाषा में लिखा गया है, जितनी भी भाषाएं हैं हमारी। और बंगाल में कहूँ तो बंगाल में भी जैसे हम रामचरितमानस के बारे में जानते हैं कि उन्होंने रामायण का अनुवाद किया, तो उसकी एक मैं रसप्रद बात बताना चाहूँगी कि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के रचना काल के लगभग 100 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में बंग भाषा के आदि कवि संत कृतिवास ओझा ने बांग्ला में कृतिवासी रामायण की रचना की थी। और जिन जिन लोगों ने अपनी भाषा में रामायण को लिखा है उसमें एक खास बात ये रही है कि उन्होंने उस राज्य के संस्कृति को उसमें डाला है। तो इसमें उन्होंने संत कृतिवास ने जो रामायण की रचना की उसमें उन्होंने एक प्रसंग डाला है कि राम ने दुर्गा पूजा की थी युद्ध में जीतने के लिए, जो ओरिजिनल रामायण में नहीं है। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे है इंदिरा जी कि अनुवाद भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। साहित्य चाहे कहीं का भी हो, लेकिन अनुवाद के माध्यम से ही विश्व से जुड़ सकता है। आपने नारायण देसाई की गांधी कथा का गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो साहित्यिक अनुवाद में सबसे बड़ी चुनौती मूल की भव्यता को खोए बिना पूरी तरह से अनुवादित कृति का निर्माण करना है, और कभी कभी अनुवाद में एक शब्द भी परेशान कर देता है। तो आपको गांधी कथा का अनुवाद करते हुए कभी कोई ऐसी मुश्किल आई कि कहीं आप अटक गए कोई शब्द पर या कोई वाक्य पर? इस पर बताइए। शुक्रिया। मैं शायद ज़्यादा अंग्रेजी में बोलूँगी, इफ़ यू डोंट माइंड। आपकी अनुमति चाहती हूँ। पहले तमिल में कुछ बोलूँ। हाँ। செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே இன்பத்தேன் வந்து பாயுது காதினிலே. The moment I hear the word Chendamil is real Tamil, the original Tamil. It seems as if somebody is pouring nectar into my ears. This is what a poet has said. I want to begin with that. फिर आपके सवाल का जवाब दूंगी, पर उसके पहले आपने जो रामायण के बारे में बात की, दुर्गा की पूजा की या शिव की पूजा की, उस संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ कि तमिल में जो रामायण लिखा गया है वो कंबन ने लिखा, तो उस रामायण को हम कंब रामायण कहते हैं। और दुनिया में, और ज़रूर ये तो कहूँगी कि अपने देश में कई लोगों को लगता है कि क्या वो द्रविडियन था ना, इसीलिए शायद आपके रामायण में हीरो रावण है और राम नहीं है। दिस इज अ मिसकंसेप्शन। नहीं है वहाँ रावण, तमिल रामायण में, कंबन रामायण में वो हीरो नहीं है, बट ही इज गॉट हीरोइक क्वालिटीज। दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि हम सब जानते हैं एक ही भूल उसने की, बाकी सब तो रावण काफी बड़े इंसान थे। तो एक लाइन जो बहुत कोट किया जाता है बार बार, राम ने रावण से कहा, इंद्र पोय नाले वा, आज जाओ और कल वापस आओ। आज तुम थक गए हो, मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। राम कहते हैं रावण से, इंद्र पोय नाले वा, आज जाओ और कल वापस आओ। ये केवल आप जो बात कर रहे थे उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाह रही थी। और अभी मैं आती हूँ मेरा अनुवाद
जो गांधी कथा है नारायण देसाई द्वारा, शायद इस हॉल में जो बैठे हैं आप में से शायद कई लोगों को मालूम होगा कि नारायण देसाई जो हैं वो महादेव देसाई जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे उनके सुपुत्र थे। और उनको लगा गांधी के साथ जो संपर्क में थे वो लोग तो आस्ते आस्ते मतलब इस दुनिया से चले जाएंगे, तो गांधी ने जो किया, द रियल फैक्ट्स ऑफ गांधीज लाइफ, वो भी तो मर जाएगा, तो उसके लिए मुझे करना चाहिए कुछ। तो हम लोग जो कथा में जाते हैं, जहाँ में भागवत कथा हो सकता है या महाभारत या रामायण जो भी, तो उन्होंने ये नया शुरू किया जिसका नाम था गांधी कथा। और उनके ज़िंदगी के दरमियान, वो अभी नहीं रहे हमारे बीच, उन्होंने करीबन 100 गांधी कथाएं अलग अलग जगह पे की। पहले केवल गुजराती में करते थे, फिर हिंदी में करने लगे, फिर विदेश से थोड़ा उनके पास इन्विटेशंस आने लगे तो वो इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में भी करने लगे। तो मैंने जो अनुवाद किया, उनके जो बेस्ट गांधी कथाएं माने जाते हैं, उनका आइडिया था मोहन, जो शायद 10वीं क्लास में 35% लेके आया है। मतलब आज के माँ बाप तो शायद मर जाएंगे अगर बेटा 35 लाएगा, 35% लाएगा, जस्ट पास्ट। पर वो मोहन कैसा महात्मा बन सका, तो हम सबके अंदर कुछ न कुछ है, एक ज्योत है शायद, जिसको जगाना हमारे हाथ में है। तो उनके कथा का नाम था पहले मोहन से महात्मा तक, मोहन से महात्मा तक। तो वो जो कथाएं थी उनको एकत्र करके उन्होंने गुजराती में एक बुक छपवाया जिसका मैंने अनुवाद किया। तो गांधी कथा एज अ कथा नहीं, पर उसको ट्रांसक्राइब करके जो किताब लिखी गई थी उसका मैंने अनुवाद किया। आपने एक सवाल किया कि तकलीफ हुई क्या कोई शब्दों में। गांधी कथा में मुझे शब्दों से इतना तकलीफ नहीं हुआ जितना विचारों से हुआ, जितना अनुभवों से हुआ, एक्सपीरियंस से हुआ। और एक ही एग्जाम्पल देके मैं माइक को पास करूंगी कि गांधी जी जब अफ्रीका में थे, इंडिया भारत आने के पहले, हम जानते हैं वो उनका शायद प्रयोगशाला था जहाँ पे उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ जो शुरू किया उसको वापस भारत में आके उसका उन्होंने अमल में किया। तो कहीं जा रहे थे ये लोग, काफ़ी जंगल, वेरी मच फॉरेस्ट पाथ, और रास्ते में एक स्ट्रीम था, वो उसको पार करके सबको वहाँ जाना था। तो थोड़ा सा कूद के जाना था। तो जब कूद के जा रहे थे, एक माँ भी थी उस ग्रुप में, तो वो माँ जब कूद रही थी, हाथ में 3 या 4 महीने का शिशु था और माँ कूद रही थी और बच्चा गिर गया। वो स्ट्रीम था, राइट, बहता हुआ पानी। तो सब कोई रुक गए, अब क्या किया जाए। माँ ने कहा जो गया वो तो वापस नहीं आएगा, चलो हम हमारे काम में आगे बढ़ते हैं। इस लाइन को ट्रांसलेट करने के लिए मैं इतनी रोई हूँ क्योंकि मैंने गांधी कथा सुना भी था नारायण देसाई से। तो मैंने उनके पास में गई और मैंने कहा मैं इसको ट्रांसलेट कैसे करूँगी, आगे नहीं जा सकती हूँ। तो आई थिंक ट्रांसलेशन इज नॉट अबाउट ट्रांसलेटिंग ऑफ वर्ड्स, ट्रांसलेशन इज अबाउट एक्सपीरियंस, ट्रांसलेशन इज मोर अ कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट। तो आई थिंक जब हम अनुवाद की बात करते हैं, जैसे किसी ने कहा राइटर्स क्रिएट नेशनल लिटरेचर, ट्रांसलेटर्स क्रिएट वर्ल्ड लिटरेचर। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत सारे मुश्किलें होती हैं, पर मेरे लिए ये ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज द एक्सपीरियंस वाज सो टेंडर, सो सेंसिटिव। आई डोंट नो इफ आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, बट बहुत अच्छी। I'm so sorry for interrupting. There is an important message. 5669 red Hyundai car. If it belongs to anybody sitting here, please come out because there's somebody who's been waiting since an hour. Thank you so much. Thank you, and I'm so sorry, ma'am. आपने बहुत अच्छे से बताया कि अनुवाद में कभी शब्दों से ही शब्दों के अनुवाद में तकलीफ ना हो और उस पंक्ति का अनुवाद करते हुए तकलीफ हो, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। क्योंकि मैंने भी जैसे नरेंद्र मोदी जी के बांग्ला में काव्य संग्रह का बांग्ला में अनुवाद किया है, तो वहाँ मुझे जैसे एक शब्द आता है गर्बो, तो गर्बो का हम
किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। जब तक उसको गर्भो ना लिखे मज़ा नहीं आता कि गर्भो क्या होता है। वो दृश्य आंखों के सामने तब खड़ा होता है जब हम उसे गर्भो लिखे। तो मैंने अपनी भूमिका में गर्भो और उन्होंने तरने तर का मेले के बारे में एक कविता है उनकी। तो मुझे लगा कि दूसरी भाषा के लोग जब पढ़ेंगे तो उन्हें पता नहीं होगा तरने तर का मेला क्या है। तो उसके बारे में भी मैंने अपनी भूमिका में 2-4 पंक्तियों में लिखा कि ये मेला कहाँ होता है, कैसे होता है, उसका पर्पस क्या है, आदिवासी लड़के लड़कियाँ कैसे वहाँ मिलते हैं। तो और तरणेतर शब्द जो है त्रिनेत्रेश्वर मंदिर, और त्रिनेत्र का ही अपभ्रंश शब्द है तरणेतर। ये भी मैंने खोजा क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं ना, तो जब मतलब असली बात पर लिखना हो तो उसका सर्च, जैसे अभी अगले सेशन में भी कहा कि बहुत सर्च करना पड़ता है हर विषय में अगर आप सही लिखना चाहते हो तो। तो अब मेरा अगला सवाल वांगथोई जी आपसे है। आपने पहले ही कहा कि मुझे हिंदी बहुत कम आती है तो मैं अंग्रेजी में जवाब दूंगा। तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी भी यहाँ सब समझती है और मैं सवाल भी अंग्रेजी में पूछने की कोशिश करूंगी क्योंकि अंग्रेजी में मुझे भी 11वीं कक्षा में 35 मार्क मिले थे और मैं बहुत खुश हो गई थी कि मैं पास हो गई तो ये भी आज याद आ रहा है। द लिटरेचर ऑफ मणिपुरी लैंग्वेज इज रिच। सिंस 1973 till date 39 Manipuri authors have been honored with साहित्य अकादमी अवार्ड्स। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। You have been awarded साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार in the year 2014। इनके लिए भी एक ताली हो जाए कि युवा पुरस्कार मिला है उनको। Thank you. You are pursuing your PhD in the subject folk literature. Tell us about Manipuri tribal literature and their scripts. Thank you, ma'am. At the very outset, I would like to thank the organizing team, particularly Sir Umasankar Yadavji, for inviting me to be a part of this Ahmedabad International Literature Festival 2022. Actually, I do write Manipuri poems, but Sir Umasankar Yadavji made me a speaker. So, regarding the question about tribal literature. आदिवासी literature, tribal literature. Actually, we the Manipuris are proud of having a literary written epic that runs more than 34,000 lines. But when it comes to written literature, most of the tribal communities, they don't have, much written literature. They don't have their own scripts except Meitei community. And these tribal communities, they still follow their oral traditions. And like this, okay. Among these tribal communities, only Meitei community has its own scripts. Other tribal communities, they use Roman alphabets. They don't have their own scripts. So among these communities, only Meitei people, they have their own scripts. It has been implemented in the curriculum, and this Meitei scripts is also very philosophical script. If I have the opportunity to say some words about this script, this script is regarded as very philosophical in the sense that the alphabets are taken out, derived from the parts of human body, and these alphabets are written in 3 rows in the concept of fire, water, air, morning, day, night, and Mangang, Luang, Kuman, and the 3 man progenitors. So not only these scripts, the structure of traditional house is akin to the anatomy of human body. They regard this their traditional house as a temple. Coming to the tribal literatures, they don't have
much written literature according to my observation, but there are lots of oral traditions. They you know, go along with these oral traditions. So I feel the need of, connections, exploration and promotion regarding these tribal literatures. Thank you, ma'am. बहुत अच्छा बताया आपने. अब अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं डॉक्टर सजाउद्दीन से, कि पहले ही जैसे हमने बताया कि भारत कई राज्यों और कई भाषाओं का देश है, और भारत का क्षेत्रीय साहित्य प्रत्येक राज्य की स्थानीय संस्कृति की विशेषताओं को व्यक्त करता है. क्या भारत के क्षेत्रीय साहित्य में अपनी राष्ट्रीय पहचान से ऊपर उठते हुए दुनिया भर के पाठकों को आकर्षित करने की क्षमता है? आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल है, सबसे पहले मेरा जवाब. और वो किस तरह से है मैं बताता हूँ, और किस तरह से होनी चाहिए वो भी बताता हूँ. Imagine if Gitanjali would not have been translated. The great treasure of literature that India had and have and will have would never have been, reached to the greater audience across the world. So translation plays a very crucial role in the form of, stretching the boundary of this regional literature. So I will give first preference to translation, and the second preference to understanding and the realizing the existence of regional literature at international level, which is already existing. 32 billion people of India are across the world. That means Indian literatures are across the world. And those are not realized yet. Ministry of External Affairs putting all the efforts since 2000 by the constitution of this committee of Singhvi committee to look after the issues and the what are the all possibly exploration of Indian diaspora across the world. तो चाहे वो गुजराती है, आपको यकीन नहीं होगा 1900 में और 1910 के दौरान जो साउथ अफ्रीका की करेंसी थी उस पे गुजराती लिखा हुआ था. आई हैव दैट फोटो विथ मी. सो सिमिलरली तमिल लिखा है, सिमिलरली मलयालम लिखा है, सिमिलरली अदर जो हमारी जो रीजनल ज़बानें हैं, उर्दू है, ये सारी जो है ना चीज़ें उस टाइम में मौजूद थी. भारत आज़ाद होने के पहले की बात कर रहा हूँ मैं. फिर भारत आज़ाद होने के बाद क्या हुआ उन ज़बानों के साथ जो अब लोगों ने अपने साथ ले गया था. चाहे वो गिरमितिया माइग्रेशन हुआ हो, ट्रेडर्स माइग्रेशन हुआ हो, स्पिरिचुअल माइग्रेशन हुआ हो, स्टार्टिंग फ्रॉम अशोका, द बुद्धिस्ट प्रीचर्स, they took languages with them. What happened with those languages? बिल्कुल. Because there was no preservation of those languages. But then coming of this cultural revival among the Indian diasporas, उन्होंने अपनी ज़ुबानों को दीगर मुल्कों में जाके प्रिजर्व करने की कोशिश की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सपोर्टिंग दैट इनिशिएटिव. And they themselves, as a people of this region, people of this language, the very essence, the very expression, the very feeling, how could they express? Therefore, they established different sangams, Telugu Sangam, Udiya Samaj, Bangla Samaj, different Samaj, linguistic Samaj were established there in different countries, starting from this, Southeast Asia to South African countries, to Caribbeans, to US and UK and Canada and Australia and the European countries. If you go there, you will find small linguistics organizations. Canada is the best example, जहाँ पे multicultural, multilingual society है, multicultural ministry भी है, जहाँ पे यहाँ से टीचर रिक्रूट होके वहाँ जाके अपनी ज़बानों में पढ़ाते हैं. तो लैंग्वेज इज़ ऑलरेडी रीजनल लैंग्वेज वहीं पे है, उसके साथ साथ रीजनल लिटरेचर वहाँ पे है. चाहे वो मराठी में हो, जो इवन मैं इज़राइल गया था जुलाई में, तो आई गॉट टू नो दैट देयर इज अ लिटरेचर प्रोड्यूस इन मराठी इन इज़राइल. तो मराठी कम्युनिटी है वहाँ पे, तो
चाहे वो मराठी हो, जो भी जबान है उसका लिटरेचर ऑलरेडी वहां पे है. नाउ आई विल कम बैक टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट इज रीजनल लिटरेचर. हमारी जो समझ है, हम एज अ स्कॉलर, एज अ राइटर ये समझ बैठे हैं कि गुजराती लिटरेचर मतलब ये जो जहाँ से जो कच्छ से स्टार्ट होता है इधर बॉम्बे के कुछ वापी वगैरह तक और ऊपर से लेके यहाँ तक, बस इतना. नो, गुजराती लिटरेचर इज बियॉन्ड गुजरात. विद पीपल योर लैंग्वेज एंड लिटरेचर मूव्स. तो इसी तरह से मैम इस तरह से लिटरेचर की हॉराइजन ऑलरेडी है. हमको बस उसको रियलाइज करना है. आई विल नॉट टेक मच टाइम. इस थैंक यू. संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला अनुवाद के माध्यम से हमारा लिटरेचर बाहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कक्षा पर जा सकता है, लेकिन एक और आश्चर्य की बात है, उसके बारे में मैं बताऊंगी जो आप लोगों को नहीं पता होगा या पता होगा भी, कि बंगाल में एक विशेष साधक संप्रदाय है, उसके बारे में बात करना चाहूँगी. ये है बाउल साधक संप्रदाय. तो बाउल संप्रदाय मूल रूप से ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा है, बंगाल की ग्रामीण संस्कृति का. और ये लोग संगीत साधना जो करते हैं वो देह साधना, संगीत के माध्यम से देह साधना करते हैं. ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए देना चाहती हूँ कि बाउल संगीत विश्व में कैसे पहुँचा ये बताना जरूरी है. तो पूर्णदास बाउल जो है वो संप्रदाय के अंतिम सर्वश्रेष्ठ गायक. बाउल संप्रदाय में वही गीत लिखते हैं, वही उसकी धुन बनाते हैं और वही लोग गाते हैं उसको. तो ये पूर्णदास बाउल जो थे, उन्होंने 1962 में विश्व युवा महोत्सव में हेलसिंकी में प्रदर्शन किया. उन्होंने विश्व के अनेक देशों में अपने गीतों को प्रस्तुत किया और बाउल का संदेश पहुंचाया. यहाँ कोई अनुवाद की बात नहीं है, जैसे गीत है उसी हाल में गाए उन्होंने. और पूर्णदास बाउल को पद्मश्री भी मिला है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि 2006 में यूनेस्को ने बंगाल के बाउल गान को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हेरिटेज के रूप में उसे सूचीबद्ध किया है. ये बहुत बड़ी बात है कि एक ग्रामीण इलाके का संगीत वो वहाँ पर सूचीबद्ध हुआ. मेरा अगला प्रश्न इंदिरा जी आपसे है. दलित साहित्य की चर्चा, जैसे हम प्रांतीय साहित्य की बात करते हैं तो उसमें दलित साहित्य भी आ जाता है. दलित साहित्य की चर्चा विश्व स्तर पर हो रही है. दलित साहित्य वह साहित्य है जो दुनिया के हाशिए पर पड़े वर्ग से संबंधित है. एक अनुवादक के रूप में आपने तमिल कविताओं, तमिल दलित लघु कथाओं के संग्रह का गुजराती अनुवाद किया है और तमिल दलित उपन्यास का भी अभी आप अनुवाद कर रही हैं. तो अनुवाद के लिए दलित साहित्य को चुनने की क्या खास वजह है, ये बताइए. मैं अंग्रेजी की प्रोफेसर हूँ, करीबन 50 साल अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ा रही हूँ. और हमारे पास जिसको आज हम अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर कहते हैं, जिसको पहले ब्लैक लिटरेचर कहते थे, तो वहाँ पे इतना सारा दर्द, इतना सारा एग्नी जो मुझे मिला, तो हर बार मेरे मन में ये आता था, क्या हमारे देश में ऐसा कोई, किसी को ऐसा दर्द नहीं महसूस हुआ? क्यों हमारे देश में ऐसे कोई लिटरेचर नहीं है? तब मुझे, जो कहते हैं बच्चे हंसते हुए, ट्यूबलाइट हुआ, क्योंकि वो सब प्रांतीय भाषाओं में है, मैं नहीं पढ़ सक रही हूँ, इसीलिए मुझे मालूम नहीं है. The oppression, the victimization, the pain, the agony, the anguish, call it what you will. तो इसीलिए मुझे लगा नहीं. पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि दलित लिटरेचर को ट्रांसलेट करना तमिल लिटरेचर को ट्रांसलेट करने से भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे उनकी जो भाषा है वो बोली नहीं है, वो तमिल ही है, पर उन जो शब्द यूज़ करते हैं, खास करके खाने पीने की जो चीज़ हैं जो मैंने कभी नहीं खाया, वो वर्ड भी मुझे नहीं मालूम है, तो उसको ट्रांसलेट करने में ज़रूर हमें फुटनोट्स या ग्लॉसरी वो देना बहुत ज़रूरी होता है. और रिलेशनशिप्स, यहाँ जो बैठे हैं सबको शायद दुख होगा, आश्चर्य होगा कि अगर मेरा भाई होगा, भाई है सॉरी, मेरे भाई के बेटी ज़रूर मेरे बेटे से ही शादी करेगी. दैट इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप. और अगर मेरा भाई ने मुझे अपनी बेटी ऑफर नहीं किया एज माई सन्स वाइफ,
उससे बड़ा इंसल्ट नहीं होता है. फैमिली फ्यूड्स हो जाएंगे. और यहाँ जो बैठे हैं सबको शॉक लगेगा, भाई से शादी कर रहा है. तो उसके लिए जो वर्ड है, एंड तेलुगु लैंग्वेज में द वर्ड फॉर बुआ इज द सेम एज द वर्ड फॉर मदर इन लॉ. आप समझ रहे हो ना, क्योंकि बुआ, मैं बुआ हूं, मैं सास बनूंगी, इतना ही फर्क है कि उसके साथ जी जुड़ा जाता है. तो जब मैं दलित लिटरेचर दो कारण से ट्रांसलेट करना पसंद करती हूं. एक, बिकॉज आई वांट दैट पेन ऑल्सो टू गेट अक्रॉस. और मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूं कि अंग्रेजी या हिंदी को बीच में लाए बिना भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना बहुत जरूरी है. Because we share a culture much more than the English language will give us. इसीलिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ. वो खड़ी है वहाँ पे, बस बंदूक नहीं है उसके हाथ में, तो सॉरी मैं ये खत्म करती हूँ. मैम, जो सबसे बड़ी बंदूक है वो समय की बंदूक है. बिकॉज आवर सेशंस आर लाइंड अप इन सब. हम चाहते हैं कि ये सेशंस चलते रहें, हम सुनते रहें, बट समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सर आ चुके हैं. सर आई वुड करना है. एक सवाल मुझे पूछना है मणिपुर वाले भाई से. हम एक्चुअली वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ. थैंक यू. तो खत्म. हाँ. नहीं, मुझे उनसे खाली एक ही सवाल पूछना था जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि मणिपुरी साहित्य में दलित लिटरेचर नहीं है, वो जानना था मुझे एक्चुअली. नहीं है? वो क्यों नहीं है? Actually, there is a social hierarchy in Manipur, but the barriers are very thin, and we don't find much about caste discrimination there. In maybe the reason, but we need a proper academic research before we come to any concrete statements regarding this. Thank you very much, sir. ओके, बस तो इस सेशन को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं. और बहुत सारे सवाल थे लेकिन समय अभाव में अभी नहीं कर पाए. फिर कभी मिलेंगे जब हम बात करेंगे इस विषय पर अगले साल. थैंक यू. थैंक यू. Now, थैंक यू सो मच. इनफैक्ट मल्लिका जी का पूरा सम्मान करते हुए और आप सभी पैनलिस्ट का सम्मान करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि लिटरेचर फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं कि हम 40-50 मिनट में सारी बातें नहीं कर सकते हैं. हमारा पर्पज़ यही होता है कि हम लोग मिलें एक बार, थोड़ी बातें कहें और थोड़ी बातें अपने आप समझें. बहुत सारी चीज़ें समझ से होंगी, क्योंकि कह तो नहीं सकते 40 मिनट में कितनी बातें करेंगे चार लोग. लिटरेचर फेस्टिवल का पर्पज़ यही होता है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेजेस को समझें, इमोशंस को समझें. फिजिकल इकट्ठा होने का यही फ़ायदा होता है. थैंक यू सो मच. Uma Shankar Yadav ji is felicitating our moderator, Mallika ji. Indira ji. Sajauddin sir. Mr. Kuman. Please have a huge round of applause for him, please. Thank you very much, the panelists. We were humbled and honored to have you all here, and thank you very much for the engrossing discussion that you could held, although briefly, on regional literature. And to conclude, I'd like to say, language is never a barrier, and regional literatures, they have been existing for forever. What all we need to do for a while is to take or to make conscious efforts and have good translators who can help us transcend boundaries and help us read and explore more about our own diverse, multilingual, and multicultural nation. Thank you very much, everyone, for having us here.
Actually, I don't bring anything from Manipur. I'm presenting one book. It's written by Sir Chan Thiam and translated by Tsinkhai Nganba. It's a Sahityā Academy award-winning book. I'm presenting it to Sir Uma Sankar Yadav ji. थैंक यू वेंको खुमन जी, और आप ऑथर को हमारी तरफ से बधाई दीजिएगा और कंग्रेचुलेशंस कीजिएगा। आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।